شوق ہے پاکستان ایئر فورس جوائن کرنے کا. پاکستان ایئر فورس جوائن کرو اور پاکستان کے لیے ایک بہترین فائٹر جیٹ. ہمارا فیوچر ٹیکنالوجی ہے. لیکن ہمارے پاس جو آج کا بچہ ہے وہ بہت زیادہ آلریڈی ایڈوانسڈ ہے اور وہ شروع سے ہی ٹیکنالوجی کے اندر ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جناب عبداللہ چکزئی بلوچستان پلس کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جناب سال 2025 ہے، یعنی کہ ہم بہت آگے نکل چکے ہیں تاریخ کے اعتبار سے، لیکن آیا اب بھی جو ہماری پریکٹسز ہیں، جو ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، کیا وہ بھی ایڈوانس ہوا، آسانیاں بنائی گئی، یا صرف ہم نے باتوں تک محدود رہے؟ بلوچستان جو کہ رقبے کے لحاظ سے نصف پاکستان ہے، اور یہاں پہ آبادی کی بات کی جائے تو یہ تقریباً 1 کروڑ سے زائد کی آبادی کا صوبہ ہے، اور یہاں پر یوتھ کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اور یوتھ کے لیے صرف تعلیم نہیں بلکہ اس کے ساتھ سکل جو ہے اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہاں پہ نیکسٹ جن سکل سمٹ جو ہے 2025 کا انعقاد کیا گیا ہے. یہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے، کون کون دوست آئے ہیں، ان سب سے ہم بات کریں گے. لیکن اس ٹائم میرے ساتھ جو موجود ہیں 2 فیمیلز یہاں پر موجود ہیں، تو ان کا بھی کنٹریبیوشن ہمارے معاشرے کی بہتری کے لیے بڑا ضروری ہے. ان سے ذرا بات کرتے ہیں. آپ کا نام؟ معصومہ قاسم. معصومہ قاضی صاحب. اور آپ کا؟ سارا نواز. سارا نواز. زبردست. معصومہ صاحب پہلے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جب سکل کی بات آتی ہے تو ہم سکل صرف یہی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بلڈنگ بنا سکتا ہے یا صرف کوئی مشین ٹھیک کر سکتا ہے، سکل یہی تک ہی لیمیٹڈ سمجھا جاتا ہے. لیکن جب اے آئی کی ہم بات کریں، روبوٹکس کی ہم بات کریں، تو وہ پھر ایک الگ لیول کی بات ہوتی ہے. تو ابھی یہ انیشیٹو لیا گیا ہے یہاں پر، کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بلوچستان کی تقدیر کو کیسے اس کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ بیسکلی اگر ہم اپنے کیریکولم کی بات کرتے ہیں تو ہم موسٹلی تھیوریٹیکل کانسیپٹس پہ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم آج کے جیسے ایونٹ کو یا کسی بھی چیز کو ہم کور کرتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس ٹائم ٹیکنالوجی میں بچوں کو پریکٹیکل لائف کی طرف، پریکٹیکل اپلیکیشنس کی طرف لانا ہے، جس میں آج کا اگر آپ ایونٹ دیکھ لیں، یہاں پہ ہم نے کچھ اس طرح کی چیزیں ایگزیبیشن میں بھی کی تاکہ پیرنٹس کا انٹرسٹ اس طرف ہو اور ہم انہیں کنوے کر سکیں ہمارا میسج کہ جو ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں وہ ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، ہمارا فیوچر ٹیکنالوجی ہے. تو ہم پیرنٹس کو بھی، اور ہم نے ایک پورا ایجوکیٹڈ ہم نے انٹلیکچوئلس کو جو انوائٹ کیا تھا، ہمارا یہی مقصد تھا کہ ہم کنوے کر سکیں کہ ہم ٹیکنالوجی ایسا انیشیٹو لے رہے ہیں جس سے کل کو بچے یا اسٹوڈنٹس جو ہیں اس سے فائدہ ہوگا انہیں، اور وہ بہت زیادہ پریکٹیکل اپلیکیشنس کی طرف موو کریں گے. زبردست ہو گیا. سارا آپ بتائیے گا کہ بلوچستان کو، کیونکہ آپ یہیں پہ ہی ہیں اور یہی کے لیے یہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے یہیں کے لوگوں کے لیے لیا گیا ہے، کیا ٹائم فریم آپ سیٹ کرنا چاہیں گی کہ اس وقت تک یا اس سال تک ہم ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر صوبے کے ہمارے جو خاص کر بلوچستان کا ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ یہ چیزیں چل رہی ہوں؟ جی ایکچولی میں یہ تو ابھی تو انیشیٹو ہی ہے اور ہم پلان کریں کہ اس سال کے اندر اس کو شروع کر دیا جائے. تو جس طریقے سے ہم اے آئی کے اندر بہت ایڈوانسمنٹ کر رہے ہیں اور فیوچر پلانس کے اندر ٹیکنالوجی بہت زیادہ امپریس کر رہی ہے، تو ہمارا پلان یہی تھا اور انیشیٹو لینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم فیوچر لیبز انٹروڈیوس کروائیں اور جو جتنا بھی ابھی ہمارے پاس جتنا بھی فیوچر اکیڈیمک پلانز ہیں انہیں انیشیٹ کر سکیں. اور کوشش تو یہی ہے کہ اس سال کے اندر جتنا زیادہ بلوچستان کے اندر کر سکتے ہیں، جتنی اپرچونیٹی اسٹوڈنٹس کو دے سکتے ہیں وہ ہم دے سکیں. یہاں پر روبوٹکس کے ساتھ ساتھ کوڈنگ، آج کل دور بھی سارا کوڈنگ کا ہی ہے. جہاں پہ بھی آپ دیکھیں، کوئی بھی ویب سائٹ ہو، کچھ بھی ہو، اس کے اندر سارا کام کوڈنگ سے ہی ریلیٹ کرتا ہے، اور فیوچر بھی آگے جو بن رہا ہے وہ کوڈنگ کے ہی سے اس کا بڑا ایک تعلق ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں میں وہ پوٹینشیل موجود ہے؟ کیونکہ ہم یہی کے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے، آپ کی فیکلٹی سے آپ کا تعلق ہے، ٹیچنگ فیکلٹی سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ کو پتہ ہے، آپ کو بچوں کے بارے میں پتہ ہے، ان کے مائنڈ سیٹ کا پتہ ہے. کب تک ہم ایبزارب کر سکیں گے، کب تک ہم ان چیزوں کو پہلے تو ایکسیپٹ کر سکیں گے، اس کے بعد اس کے اوپر کام ہو سکے گا؟ ایکسیپٹ کرنے کے اندر ضرور ٹائم لگے گا. اگر ہم اوور آل بات کر رہے ہیں تو بالکل اس میں ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس جو آج کا بچہ ہے وہ بہت زیادہ آلریڈی ایڈوانسڈ ہے اور وہ شروع سے ہی ٹیکنالوجی کے اندر ہی ہے. تو میرے خیال سے ہمیں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے اور لگے گا بھی نہیں. لیکن پھر بھی کوشش تو یہی ہے کہ اس کو لانے کا مقصد بھی یہی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے. ایجوکیشن کی بات اگر کی جائے تو ایجوکیشن میں کام کا بڑا مارجن ہے، لیکن جتنا بھی کام ہوا ہے اس میں ہمارے پرائیویٹ سیکٹر یا ایسے دوست جنہوں نے ایجوکیشنسٹ ہوتے ہوئے انویسٹ کیا اپنا ٹائم، اپنا پیسہ بلوچستان کی یوتھ کے لیے، اس میں جناب جو شخصیت میرے ساتھ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، ان کا بہت بڑا کردار ہے بلوچستان کے بچیوں کے لیے. ایک اچھی سوچ کے ساتھ پاکستان انٹرنیشنل لیول کو میچ کرنے کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی ہے. زاہد جان محمد دوخیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو کہ دیر ہے درست ہے، بلوچستان میں بھی اسکل کے لیے کسی نے انیشیٹو لیا. سر
थैंक यू वेरी मच। दूसरा, आपने जिस तरह से बात की कि एजुकेशन भी हमारा एक वसीला है, ये वसाइल में से एक सबसे बड़ा वसीला और ज़रिया है। तो जिस तरह हमारे साहिल होते हैं, हमारे बाकी रिसोर्सेज हैं, मिनरल और नेचुरल, ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन रिसोर्स है हमारा। अगर इस रिसोर्स के ऊपर हम एनवायरनमेंट और अपॉर्चुनिटी बलूचिस्तान को दें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के होनहार बच्चे किसी से भी पीछे हैं, चाहे वो किसी भी सेक्ट के हों, किसी भी मज़हब के हों, किसी भी ज़ुबान के हों। बलूचिस्तान के होनहार बच्चे किसी से कम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे लिए आज ये खुशकिस्मती ये है कि आज का दिन बहुत ही लैंडमार्क दिन है, जो कि इंशाल्लाह बलूचिस्तान के आने वाले दिनों में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एजुकेशन की जो रेवोल्यूशन है, दैट्स गोइंग टू रॉक। एंड इंशाल्लाह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कोडिंग, डिकोडिंग है, क्रैकिंग डाउन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, कम्युनिकेशन है, कोलैबोरेशन है, इंशाल्लाह दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर बलूचिस्तान। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करेगा सर, इंशाल्लाह। बलूचिस्तान में तो हमेशा एक्सपेरिमेंट्स हुए, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या बहुत सी हवाले से, लेकिन ये एक पॉजिटिव, एक आप लोगों की एक कोई कोशिश है। क्या समझते हैं कब तक एब्जॉर्ब हमारे बलूचिस्तान की आवाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कोयटा तो चलो ठीक है, हम अगर बलूचिस्तान की बात करें, कब तक एब्जॉर्ब कर सकेगी, कब तक ये हम फंक्शनल होते हुए देखेंगे जी? इंशाल्लाह पहली चीज़ तो ये है कि एजुकेशन को जिस तरह से हम मुतारिफ करा चुके हैं पिछले 20 सालों में और आने वाले समय, एजुकेशन एक न्यूट्रल चीज़ है, ये हर एक की ज़रूरत है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इनमें से सिवाय वो जो कि मुल्क का नुकसान चाहते हैं या इस्लाम का नुकसान चाहते हैं, उसके अलावा मैं समझता हूँ एजुकेशन हर एक शख्स की ज़रूरत है। तो एक ये रेजिस्टेंस हमें फेस होनी थी और वो इंशाल्लाह नहीं होगी। दूसरा, जहाँ तक इसको एब्जॉर्ब करने की बात है, तो सिलेबस जो हमारा है वो इतना कंटेंट ओरिएंटेड है और इतना इंटीग्रेटेड है कि इंशाल्लाह गैर महसूस अंदाज में आने वाले पहले साल में, फिर आने वाले 4 से 5 साल में इंशाल्लाह बलूचिस्तान के तमाम स्कूल ये देख लेंगे कि उनमें गैर महसूस अंदाज में बहुत बड़ा इनकलाबी चेंज आया है। और एजुकेशन से मेरा ख्याल है सब कुछ बनता है। सर, आखिरी सवाल आपसे, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। जी, जी। सवाल तो ये मेरा किसी पॉलिटिशियन से होना चाहिए था, लेकिन एक एजुकेशनिस्ट के होते हुए इतने बच्चे आपके इंस्टीट्यूट से पढ़ के गए, आज कहीं ना कहीं सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। सर, इंस्टीट्यूट्स के अंदर ऐसे लोग सामने आ रहे हैं, जो रिसेंटली अभी एक प्रोफेसर साहब की बात आई कि जो एंटी स्टेट एलिमेंट के तौर पे यूज़ हुए। क्या समझते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो वो तो बड़ी मुकद्दस जगह होती है, तो वहाँ पर अगर इस तरह के अनासिर आते हैं तो यहाँ पे गैप्स किस तरह हम इसको फिल कर सकते हैं? ये मेरा ख्याल है पूरा तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि यानी अगर वाक़ये की बात करूँ तो इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़या है। और अगर मैं ये बात करूँ कि कहाँ से फ्लॉ हुआ था उस इंस्टीट्यूशन के अंदर कि उसने इस तरह के लोगों को, इस तरह के सहूलतकारों को बग़ैर स्क्रीनिंग के अपने साथ किया था, तो ये उनकी मेरा ख्याल है फेलियर है। और ये फेलियर किसी सूरत बर्दाश्त भी नहीं होगा और ना ही बर्दाश्त होना चाहिए। क्योंकि देखें, हम नेशन बनाने जा रहे हैं, खुदा न ख्वास्ता नेशन तबाह नहीं करने जा रहे। तो जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी अभी आपने निशानदेही की, ये तो एनीवेज डिस्ट्रक्शन है, ये तो कंस्ट्रक्शन नहीं है। ये मेरा ख्याल है उस वेरी डिपार्टमेंट और उस वेरी यूनिवर्सिटी को पता होगा कि उन्होंने कहाँ से लिक्यूना छोड़ा था, कैसे ये लूप छोड़ा था और फिर कैसे वो पकड़ा गया। तो बहरहाल काबिल मज़म्मत है। जी जनाब, यहाँ पे एक बच्ची हमारे साथ है जिन्होंने हाइड्रोलिक एक्वा बॉट बनाया है, और उसके साथ साथ जो एक वायरलेस जो एक गाड़ी है, ठीक है, वायरलेस व्हील्स जो हैं वो उन्होंने बनाए हुए। यहाँ पे सिरिंजेस की मदद से इन्होंने एक्वा बॉट बनाया। क्या नाम है बच्ची आपका? मेरा नाम अनम बतूल है। अनम बतूल, ये बताइए किस क्लास में हो? सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग। माशाल्लाह, सेकंड ईयर में हो। ये आपने एक्वा बॉट बनाया हुआ है, कहाँ से इंस्पायर हुई? ये सिरिंजेस क्या डॉक्टर नहीं बन पाई तो आपने एक्वा बॉट बना दिया? नहीं, पहले मुझे तो हमेशा से शौक़ है पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करने का, तो मैं बस ये कर रही हूँ ताकि मतलब पाकिस्तान की डेवलपमेंट में हेल्प हो। तो कहाँ से ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? ये इक्विपमेंट्स कहाँ पे आपने ढूंढे और इसका आइडिया कहाँ पे आपको मिला? आपने वायरलेस गाड़ी भी बनाई हुई है, तो ये कहाँ से आपने ये चीज़ें किस तरह आपको पता लगी? तो मतलब गाइडेंस के लिए और इंस्पिरेशन के लिए तो कॉलेज टीचर्स मौजूद होते हैं, तो वो हमें गाइड करते हैं कि आप ये ट्राई करो, ये ट्राई करो। और जो मटेरियल्स हैं वो मतलब लोकल स्टोर्स पर मिल जाते हैं। तो आगे का क्या प्लान है? आगे क्या बनाना चाह रहे हैं? आगे मैं सोच रही हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करूँ और उधर पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन फाइटर जेट। ज़बरदस्त। यहाँ पे एक और नौजवान भी है, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद यज़दान है एंड आई एम सेकंड ईयर स्टूडेंट ICS। ज़बरदस्त। ये क्या बनाया आपने? बेसिकली आप देख रहे हैं इसको, मैंने नाम दिया है लाइन फॉलोइंग रोबोट एंड अवॉइडिंग ऑब्स्टिकल्स। अच्छा, यानी कि ये खुद ऑब्स्टिकल इसको फील हो जाएगा, या ये
AI के थ्रू उसको पता चल जाएगा कि आगे कोई ऑब्स्टिकल है तो ये रुक जाएगा। यस बेसिकली आप जो देख रहे हैं ना, ये आगे इसका जो फ्रंट है ना, इसका अल्ट्रासोनिक सेंसर है। बेसिकली मैंने इसको इस तरह कोड किया है कि अंडर द 15 सेंटीमीटर रेंज में है ना, ये ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करेगा। अगर डिटेक्ट किया ना तो इसकी ट्रेजेक्ट्री चेंज करेगा, इफ़ नॉट देन इट विल गो फॉरवर्ड एंड स्ट्रेट। अच्छा, यानी जैसे हम उसकी बात करें डॉल्फिन्स की, तो वो आवाज़ भेजते हैं, जब वो वापस टक्कर के आती है तो इनको पता चलता है कि कहाँ पर कोई चीज़ मौजूद है। तो ये भी उसी तरह कुछ वेव्स छोड़ता है ताकि इसको पता चलता है इतनी रेडियस में कहीं ना कहीं कुछ मौजूद है तो रुक जाता है। बेसिकली ऐसे इसी प्रिंसिपल में काम करता है, बट इंस्टेड ऑफ साउंड इट रिफ्लेक्ट्स लाइट। बेसिकली लाइट सेंड करता है, देन इट रिफ्लेक्ट इधर से आता ही है, देन इसको फिर डिस्टेंस का इधर मालूम हो जाता है, देन डिस्टेंस है ना कैलकुलेशन जाती है इस ऑडियोनो कोड में, देन इसी के ज़रिए से है ना देन ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ज़बरदस्त, थैंक यू थैंक यू। जी जनाब, जैसे पहले मैंने कहा कि जहाँ पर सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स, फैकल्टी यहाँ पर मौजूद है, उसी तरह यहाँ पे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने इस सूबे के लिए काम भी करना है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो जनाब शख्सियत मेरे साथ है, जब ख़वातीन का किरदार सियासत में ज़िक्र है तो बुशरा रिन साहिबा का जिक्र उसमें लाजमी आएगा। एक्स पार्लियामेंटेरियन है और अभी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, मतलब बलूचिस्तान की आवाज़ वो जगह जगह उजागर करती है। मैडम, स्किल के बारे में दे रहे हैं, दुरुस्त है, बलूचिस्तान में भी स्किल इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगी कि मतलब इसमें फिर प्राइवेट सेक्टर ने अपना हिस्सा लिया, गवर्नमेंट की तरफ से एज सच हमें नज़र नहीं आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एज अ एजुकेशनिस्ट जो मैंने आज ये प्रोग्राम अटेंड किया है, आई थिंक बलूचिस्तान को आगे जाने की ज़रूरत है। और एज अ एजुकेशनिस्ट मैंने भी 30 सालों में यही मेरी कोशिश थी कि हम आगे बढ़ें। और मेरा ख्याल है कि जाहिद मंदुखेल साहब की मैं जितनी तारीफ़ करूं कम है, कि देखिए फ्यूचर बच्चों का जो है वो अब आप इससे निकल गए कि बुक्स और ये सिस्टम और छोटे कंप्यूटर्स और ये सब कुछ, हमें बहुत आगे जाना है। तो आगे जाने की ये पहली सीढ़ी है बलूचिस्तान के लिए। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को इस टाइम पे चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा डालें और बलूचिस्तान के वो गरीब बच्चे जो दूर दराज इलाकों में और डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, उन तमाम के लिए ये बेहतरीन जो है मौका जो है उन तक को फराम करें। मैडम, लेजिस्लेशन में आपका बड़ा किरदार रहा, लेजिस्लेशन भी आपने काफ़ी की। यहाँ पर हमने देखा कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से मतलब हमारी बदनसीबी मैं कह लूँ, या कि वहाँ से हमें ऐसी खबरें आ रही होती हैं कि वहीं से जो सहूलतकारी हो या कुछ हो, इस तरह के अनासिर हमारे सामने आ रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ बलूचिस्तान में इतना बेहतरीन इकदाम हो रहा है और कल यहीं से अगर कुछ इस तरह की चीज़ सामने है तो बड़ी देखेंगे, बट अपना अपना जो है ना कंट्रीब्यूशन डालना वो सबका फ़र्ज़ है। और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जो है बेहतरीन तरीके से इसको हैंडल करे, जो कि मुझे नहीं लगता इस टाइम पे हालात बहुत ख़राब हैं। या इस तरह के जो यहाँ पर एक चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं तो इससे वो महरूमियाँ कहीं ना कहीं कम होंगी, एड्रेस होंगी उनकी जो भी नीड्स हैं। बिल्कुल होंगी। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि तालीम एक चिराग है और अगर आपने आगे जाना है, रास्ता रोशन करना है, तो इस चिराग को हाथ में लेके जाना होगा। जब तक हमारे साथ तालीम नहीं होगी तो हम वो किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकते। चाहे हम रोड बना लें, चाहे हम बिल्डिंग्स बना लें, होटल्स बना लें, हम खुदा करे कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक हम तालीम को आगे नहीं ले जाएंगे हमारा सूबा आगे नहीं जा सकता। जी जनाब, जिस इदारे ने ये समझा, बेशक वो जैसे मैडम ने कहा कि थोड़ा सा आखिरकार हमारे पास भी जो स्किल्स है और ख़ासकर रोबोटिक्स जो है उसके हवाले से कोई नॉलेज या बच्चों को कोई स्किल्स फराम करने के लिए जिस इदारे ने कदम लिया है, उस इदारे के दो होनहार दोस्त हमारे साथ, इनसे ज़रा बात करते हैं। मोहतरम, आपका नाम? गुलाम अब्बास नाम है। गुलाम अब्बास भाई, ये बताइएगा कि स्किल्स की तरफ तो दुनिया बहुत आगे चली गई है, फिर पाकिस्तान में फिर बलूचिस्तान की जब बात आती है तो स्किल यहाँ पर हमारे पास तो जो स्किल्स हैं एआई में अभी भी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मौजूद हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन बलूचिस्तान में अब ये अपॉर्चुनिटी आप लोग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। क्या सोचा, क्या समझा, किस तरीके से ये चीज़ें आप सामने लेके आए? जिस तरह आपको मालूम है कि रिवायती जो तालीम है उसका अब दौर नहीं रहा और दुनिया जो है बहुत आगे निकल चुकी है टेक्नोलॉजी के हवाले से, एआई के हवाले से, और हमें अपनी निसाब को रिविज़िट करने की ज़रूरत है, उसको मज़ीद देखने की ज़रूरत है कि क्या मौजूदा निसाब हमारी बच्चों की जो मुस्तक़बिल की ज़रूरियात है उनको पूरा कर सकता है, क्या ये जॉब ओरिएंटेड है, क्या ये इनको लेकर आगे मुस्तक़बिल में उनकी ज़रूरियात पूरी हो सकती नहीं हो सकती। तो उन हालात को देखते हुए अब ज़रूरी इस अमर की है कि जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं एआई के हवाले से, रिबोट्स के हवाले से,
उस हवाले से लोगों को अवेयरनेस देना, लोगों को उनके ऊपर काम पे लगाना, उनकी माइंड को उस तरफ डाइवर्ट करना और रिवायती तालीम से हट कर जो है एक चीज़ की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाना हमारा मकसद है। उसी मकसद को लेकर ये प्रोग्राम आज इंट्रोड्यूस कराया गया क्या है। उम्मीद क्या है, क्योंकि अभी पार्टिसिपेशन तो काफ़ी ज़्यादा है, जगह अच्छी है, लोग भी आए हैं और डिफरेंट सेक्टर से आए हुए हैं, खाली एजुकेशन से जिनका बैकग्राउंड है वो नहीं, सिविल सोसाइटी से भी आए हुए हैं, पॉलिटिशियंस भी आए हुए हैं। तो क्या आप समझते हैं, उम्मीदें क्या हैं कि कहाँ तक हम जा सकेंगे और जो टारगेट आपने एक सेट किया है वो अचीव होने का क्या एक टाइम फ्रेम सेट किया है? बेसिकली ये अभी इनिशियल स्टेज है, लेकिन जैसे ही एक चीज़ को अडॉप्ट करने में, एक चीज़ को लोगों के अंदर अवेयरनेस आने में और उसको मुकम्मल तौर पे अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है, लेकिन हम उम्मीद है कि ये चीज़ें लोगों की समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसके बगैर हमारा चारा नहीं है। अभी दौर जो है जिस तरह से बहुत फास्टली चेंज हो रहा है और हमारे पास दिन रात में जो है ना हमें ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आ रहा है, ऐसे ऐप सामने आ रहा है, तो वो अडॉप्ट करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई और रास्ता है नहीं है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ बहुत जल्द जो है ना लोग इसको अडॉप्ट करेंगे, लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी और ये चीज़ कामयाबी से जो है ना हम किनार होगा। ज़बरदस्त हो गया जनाब। एक और दोस्त भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं ज़रा। यहाँ पे अभी बात हो रही है कि एआई आ गया है तो ये लोगों की जॉब्स खा जाएगा, तो अगर हम एआई पे काबू नहीं पाते, हम नहीं सीखते, तो पहले तो नाम बताइएगा। अहमद मेरा नाम है जी। ठीक है अहमद, ये बताइएगा कि जैसे मैंने कहा एआई लोगों की जॉब्स खा जाएगा, सुनने में आ रहा है, तो अगर एआई को हम समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो ये चीज़ें वाकई मुश्किलात हो जाएंगी। तो इसको पढ़ने में, समझने में कितना टाइम लग सकता है? वेल देखिए, एआई जो है ये बात बिल्कुल होती है कि ये जॉब्स ले लेगा, बट मुझे नहीं लगता ये इतना जल्दी कोई होगा, बिकॉज पाकिस्तान में जो भी ट्रेंड आता है इट टेक्स क्वाइट अ वाइल, एकदम से नहीं आता। तो बेहतर ये है कि हम इसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करें। फिर जो बलूचिस्तान के हालात है, इसमें इस टाइम इस तरह के समिट होना क्वाइट ज़रूरी है, ताकि लोगों के पास अवेयरनेस आए और थोड़ा बहुत इसका लोगों को पता चले। तो इसके लिए अभी कितना टाइम हमें दरकार होगा? जैसे कि अभी हम इनिशियल स्टेज पर हैं, तो कब तक हम इसको फाइनल कर सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि यार हाँ, अब ये बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो इधर तक हो गए हैं कि इस चीज़ों को समझ रहे हैं, इसके ऊपर काम हो? वेल आई थिंक समथिंग विच विल ऑब्वियसली टेक टाइम। ये एक टाइम टेकिंग जॉब है, बट देखिए पहला स्टेप हमने ले लिया, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले टाइम में वो जगह भी आ जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। जी जनाब, जो नेक्स्ट जन स्किल समिट 2025 है वो जारी है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और यहाँ पर जो बिलखसूस जो सिविल सोसाइटी है वो इस चीज़ को किस तरह देखती है। जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, ये पॉलिटिकली भी बड़ा स्टेबल हैं, इन्होंने बड़ा वक्त गुजारा, उसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी रही हैं और ख़ासकर जो एजुकेशन है बलूचिस्तान की, उन पर बड़ा काम इन्होंने किया। शाजिया लांगो साहब हमारे साथ हैं। शाजिया साहब, अब स्किल की तरफ दुनिया बदल रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है एजुकेशन हमारी, क्योंकि पहले सिर्फ हम रिवायती पढ़ाई किया करते थे, अब स्किल्स साथ साथ हों तभी हमारी डिमांड रहेगी मार्केट में। तो क्या कहेंगे, अभी यहाँ पर एक इवेंट हो रहा है जो कि नेक्स्ट जन स्किल समिट 2025 के हवाले से, कैसे देखती हैं आप? मैं एक तरह से कहूँगी कि ईगो सेटिस्फाई हुआ इस समिट को यहाँ देखकर, इस तरह से होता हुआ, क्योंकि दुनिया जिस तरह आगे बढ़ गई है, दुनिया जिस तरह चीज़ों में आगे निकल गई है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है ये एक एहसास कमतरी कह लें, लम्हा फ़िक्रिया कह लें, या जो भी था, हम ये सोच रहे थे कि अगर बलूचिस्तान के लोगों को इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो हम आने वाले चंद सालों में हम कहाँ खड़े होंगे, बलूचिस्तान का यूथ कहाँ खड़ा होगा। तो आज ये समिट देखकर और जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं फ्रॉम दी चंक ऑफ पीपल, और अगर इसको अडॉप्ट किया जाए बड़े लेवल पर, तो मैं समझती हूँ कि इट्स नॉट टू लेट। बहुत अच्छे टाइम पे इस इनिशिएटिव को लिया गया है। इस टीम के हवाले से मेरी अपनी भी जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो इम्प्लीमेंट होता है जिस तरह से यहाँ डिस्कस किया जा रहा है, तो ये एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है और दुनिया जिस तरह एआई की टेक्नोलॉजी में इवॉल्व हो रही है, हमें इस एवोल्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ऐड भी करता चलूँ, आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, कि जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बात आती है अपॉर्चुनिटीज़ की, तो ये हम वो अपॉर्चुनिटी समझें कि जो खासकर स्किल्स के हवाले से है, और यहाँ पे इनकी कोई MOU साइन हुआ है, मेरा ख्याल है इस्लामाबाद की कोई फर्म है या कोई इदारा है उनके साथ, तो मेरे ख्याल से ये बलूचिस्तान के लिए नई जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसका दरवाज़ा खोल रही है। देखिए, बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा खुलेगा। लोग अभी अगर बलूचिस्तान के लिए कोई सोच रहा है और यहाँ भी अपनी इंटरवेंशंस करना चाह रहा है, ये बड़ी बात है। इसको अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए और इसको ग्रैब करना चाहिए। अब सिर्फ ये हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं होना चाहिए, हमारे सोशल सर्कल जो है, सिविल सोसाइटी का काम नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को इसको ओन करना चाहिए
فرام دی ہیوی بیگس ٹو اسمارٹ ٹولس کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. اور جو ہمارے اس وقت رورل میں انٹیریئر میں ایجوکیشن کی جو حالت ہے, اسٹل دیر از اے کویسچن کہ وہاں کیسے ہوگا. حالات تو یہ ہیں کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, تو بھی بچے پوچھ رہے تھے کہ پھر یہ اے آئی کو ہم کیسے اس کا استعمال کریں گے جب ہمارے پاس انٹرنیٹ ہی نہیں ہے. تو ہمیں کچھ چیزوں میں ایوالو ہونے کی ضرورت ہے, اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, صرف ایک ول چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ ایک سمپل ایک کمپنی ایک ول کے ساتھ, ایک بزنس ول کے ساتھ کسی چیز کو کر سکتی ہے, تو ایک اسٹیٹ, ایک ریاست اگر پراپر ایک مشن لے کے کرنا چاہے تو اس کے پاس ریسورسز بھی ہیں, اس کے پاس بجٹ بھی ہے, اس کے پاس مین پاور بھی ہے, وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتی. اس میں جیسے آپ نے کہا ابھی کہ ہمارے پاس کہتے ہیں ہر رات کے بعد صبح بھی ہے, ٹھیک ہے. جیسے ابھی ہم نے کہا کہ اب آپ نے کہا کہ اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ مین گورنمنٹ ہی ہے. گورنمنٹ اب WTTC میں جو روایتی ایک اسکل سکھا رہی ہے, کہ جو ایک اسکل لیبر بنا رہی ہے, لیکن اسکلفل مائنڈ یا تھاٹ یا آئیڈیاز جنریشن والے ایک مائنڈ نہیں بنا رہی, تو اس کو بھی اس طرح ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, میں نے کہا نا فرام ہیوی بیگس ٹو اسمارٹ ٹولس کی طرف ہمیں ٹریول کرنا ہوگا, کیونکہ ہمارے بچے آج بھی سب سے پہلے جن چیلنجز کو کوپ کر رہے ہوتے ہیں وہ لینگویجز کا بیریئر ہے. گھر سے وہ لوکل لینگویجز کے بعد سب سے پہلے اردو سے لڑ رہے ہوتے ہیں, اردو سیکھنا ہوتا ہے ان کو, اس کے بعد ان کو انگلش سیکھنا ہوتا ہے, جبکہ دنیا اس ٹائم میں وہ روبوٹکس پہ کام کر رہی ہوتی ہے. ایون میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, بیک ان 2012 وین آئی واز ان US میں انریچڈ اسکول کے میں نے 2 گریڈ کے 3 گریڈ کے بچوں کو روبوٹکس پہ کام کرتے دیکھا. 2012 کی میں بات کر رہی ہوں اور 2 گریڈ کے بچوں کی بات کر رہی ہوں. تو میں نے کہا نا کہ آج میرا بڑا ایگو سیٹسفائی ہو کہ یہاں پہ روبوٹکس کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ AI کی بات ہو رہی ہے آخرکار, اور یہ ایک اچھا وہ ہے, اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. اور ہمارے پاس ایوولوشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, اس کی اونرشپ کی ضرورت ہے. اور ہمیں تھوڑا سا ایکسٹرا اسمارٹ ہونا پڑے گا اس حوالے سے کہ ہم لینگویج بیریئرس کو کس طرح سے کوپ کر سکتے ہیں, ہم اور باقی مسائل کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں, اور جو چیزیں ہمارے لیے آنے والے ٹائم میں یوزفل ہیں وہ کیسے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جی جناب, اس ایونٹ میں جہاں پر سول سوسائٹی ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, اور جس آرگنائزیشن کے تھرو یہ ہو رہا ہے وہ موجود ہے, وہیں پر ہمارے ساتھ ایسی شخصیت بھی موجود ہے جو سینٹ میں بلوچستان کی ایک توانا آواز بنی ہے, اور ہمارے ساتھ آج اس ایونٹ میں بھی موجود ہے. محترمہ ثنا جمالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. محترمہ, یہاں پر جو ایونٹ ہو رہا ہے, بلوچستان سے آپ کا بھی تعلق ہے, آپ کی فیملی کا جو بلوچستان کی پالیٹکس ہے اس میں بڑا اہم کردار ہے, تو یہ نوجوانوں کے لیے آپ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں؟ بھائی, جب ہم نے دیکھا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس موقع کی ضرورت ہے, اگر ہمارے بچے نہیں سیکھیں گے وہ نہ اسلام آباد سے کوپ کر سکیں گے نہ امریکہ سے کوپ کر سکیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہمارا سرکاری اسکول کا بچہ اور گورنمنٹ اسکول کا بچہ دونوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مستفید ہو, کیونکہ ہمارے صوبے میں سب سے زیادہ پرابلم ہی جابس ہے, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے وہ خود ہی اپنی جابس کریٹ کر سکتی ہیں, وہ اپنے اسکل کو خود ہی ان کو منوانا جائے گا. تو اسی لیے یہ ایک ریولوشن ہے صوبے کے لیے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہمارے بلوچستان کے اسکولز ہیں ان میں سب میں ہونا چاہیے, تاکہ بچے دنیا کے ساتھ لڑ سکیں. اور میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں کہ بل گیٹس نے کہا ہے کہ 2030 میں 3 چیزیں ایگزسٹ کریں گی, ایک آپ کی بایولوجی, ایک دوسرا انرجی ایکسپرٹس, تیسرا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوڈنگ, باقی سب چیزیں مشینز ٹیک اوور کریں گی. تو ابھی آلریڈی اٹس ہائی ٹائم ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل آئے اور ٹیکنالوجیکل انوویشن میں آئے, کیونکہ بچوں کو صرف نہ بکش تعلیم چاہیے پر یہ ٹیکنالوجی کی بھی چاہیے, وہ اپنی تاکہ روزگار خود حاصل کر سکیں.